Hello children, today we are going to start our new chapter number 6, combustion and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industries and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. Children, as we know that for various purposes at our home, various kinds of fuels are used. जैसे कि इंडस्ट्रीज में, होम्स में, फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. तो क्या हम इन सब जगह एक ही तरह का फ्यूल यूज लेते हैं या डिफरेंट फ्यूल्स इन डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपन यूज में लेते हैं? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एट होम हम जो फ्यूल्स यूज में लेंगे दैट इज काउ डंग, वुड, एलपीजी एटसेट्रा. फिर हम जो फ्यूल्स ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में यूज में लेंगे दैट इज कोल, चारकोल एटसेट्रा. एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स वी यूज फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एटसेट्रा. Okay children, you are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame, but whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical processes of burning and the types of flame produced during this process. Children, अगर हमने burning of a candle को अगर हमने नोट किया है तो क्या हमको कोल के बर्न होने में, क्योंकि कोल भी एक फ्यूल है ना, बर्न होता है. तो जब कोल बर्न होता है और कैंडल बर्न होती है तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है? दोनों में हमने एक डिफरेंस नोट करा है कि जो कैंडल है इट बर्न्स विद अ फ्लेम, वो फ्लेम के साथ बर्न होती है, लेकिन कोल डज नॉट बर्न्स विद अ फ्लेम. इन द सेम वे कई ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, वहीं देयर आर मैनी मटेरियल्स विच बर्न्स विदाउट अ फ्लेम. ओके, तो हम हमारे इसी लेसन में केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टडी करेंगे एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम. जब कोई भी चीज बर्न होती है तो उसमें कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और जब वो बर्न होती है तो टाइप्स ऑफ फ्लेम्स जो प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये हम इस लेसन में रीड करेंगे. 6.1 What is combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. Figure 6.1. Children, this is figure 6.1, burning of magnesium. As we had already studied in class 7th that when we burn magnesium in the presence of oxygen, magnesium oxide is formed and it produces heat and light. Okay children? We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. Children, similar activity हम perform करेंगे with the help of piece of charcoal. हम क्या करेंगे? टोंग्स की हेल्प से उस चारकोल के पीस को टोंग्स की हेल्प से होल्ड करेंगे और उसको एक कैंडल या बंसन बर्नर की फ्लेम के पास लेके जाएंगे. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट इट स्टार्ट बर्निंग एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. इन द सेम वे जब हम कोल को भी बर्न करते हैं इन एयर तो सिमिलरली इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एंड light. Children, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat
is called combustion, and the substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. Children, what is combustion? Combustion is a chemical process जिसमें जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, है ना. Such type of process is known as combustion. ओके, और केमिकल प्रोसेस क्यों होगा? क्योंकि जब वो सब्सटेंस बर्न होता है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केमिकल प्रोसेस. एंड सच टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस इज नोन एज कम्बशन. और ऐसा सब्सटेंस जो दैट अंडरगोज कम्बशन, जिसका कम्बशन होता है, दैट अंडरगोज कम्बशन इज नोन इज सेड टू बी कम्बस्टेबल, यानी कि उसको अपन कहेंगे कम्बस्टेबल सब्सटेंस. और जितने भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, जिनका कम्बशन होता है, such type of combustible substance is also known as fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given off during combustion, either as a flame और एज अ ग्लो. कभी कभी चिल्ड्रन ये जो फ्यूल होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं. और जब ये फ्यूल या कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न होते हैं, जब उनमें कंबशन होता है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कंबशन, या तो फ्लेम के साथ या सिर्फ एक ग्लो, यानी कि विदाउट फ्लेम लाइट भी प्रोड्यूस होगी. फ्लेम के साथ या बिना फ्लेम के सिर्फ ग्लो होकर किसी भी तरीके से, लेकिन लाइट भी प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन. So children, in the reactions mentioned above, magnesium and charcoals are the combustible substance. तो जो हमने ऊपर रिएक्शन देखी, इधर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और बर्निंग ऑफ चारकोल और बर्निंग ऑफ कोल, इसमें जो भी अपन मैग्नीशियम है या चारकोल है या कोल है, these all are combustible substances. और इनमें क्या हो रहा था ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस? कंबशन हो रहा था. ओके चिल्ड्रन. Activity 6.1. Collect some materials like straw, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion takes place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible. चिल्ड्रन, ये बहुत इजी एक्टिविटी है, बट ये ध्यान रखना है कि टीचर के सुपरविजन में ही इसको करनी है. अपन कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे जैसे कि स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एटसेट्रा. ओके, और वी विल प्रिपेयर द टेबल 6.1 लाइक दिस. अपन जितने मटेरियल्स हैं उनको यहाँ पर उनके लिस्ट बना लेंगे, एंड वी हैव टू मेंशन दैट दीज मटेरियल्स आर कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल. उनको बर्न करने पे देखेंगे अगर वो फ्लेम कैच कर रहे हैं या ग्लो के साथ बर्न हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? दे आर कंबस्टेबल मटेरियल, अदरवाइज दे आर नॉन कंबस्टेबल मटेरियल. वुड, एज वी ऑल नो दैट वुड इज अ कंबस्टेबल मटेरियल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वुड को टिक कर देंगे. नाउ पेपर अगेन इज अ कंबस्टेबल मटेरियल, क्योंकि ये बर्न होता है, इट कैचेस फायर, इसलिए इट इज अ कंबस्टेबल मटेरियल. आयरन नेल इज नॉन कंबस्टेबल मटेरियल. केरोसिन ऑयल अगेन इट इज अ कंबस्टेबल मटेरियल. स्टोन पीस इज नॉन कंबस्टेबल मटेरियल. स्ट्रॉ, it is combustible material. Charcoal, again it is a combustible material. Matchstick obviously catch fire easily, thus it is a combustible material. And glass is a non-combustible material. So this is our activity 6.1. Can you name some more substances which are combustible? You can add those to table 6.1. Let us investigate conditions under which combustion takes place. Children, अगर आप और कुछ combustible substance के बारे में जानते हैं तो you can add those materials to table 6.1. Okay children? Now let us investigate those conditions under which combustion takes place. Combustion किन किन conditions में होता है ये हम स्टडी करेंगे. नाउ एक्टिविटी 6.2. फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल,
Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Figure 6.2a. Observe what happens to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Figure 6.2b. Again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. Figure 6.2c. Watch the flame again. What happens in the three cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? We find that for combustion air is necessary. The candle burns freely in case A, when air can enter the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. Now children, एक्टिविटी 6.2 में हमें ये शो करना है कि जो बर्निंग का प्रोसेस है उसमें एयर का क्या रोल है. ठीक है. एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग. किसी भी बर्निंग प्रोसेस के लिए एयर इज नेसेसरी, इट इज एसेंशियल. तो अपन क्या करेंगे, वी टेक वुडन ब्लॉक्स, उस पे कैंडल को अपन कैंडल को बर्न करके उसमें उसके ऊपर रख देंगे. ठीक है. तो ये जो हमने लाइटेड कैंडल है ना, कैंडल को जलाकर उस पर रख देंगे. तो ये जो लाइटेड कैंडल है इसको जब इसमें फिक्स करेंगे और हम क्या लेंगे, ग्लास चिमनी, इसको इसके ऊपर रखेंगे. लेकिन इसको इसके ऊपर रखने से पहले यहाँ पर वुडन ब्लॉक्स के ऊपर 2 ब्लॉक्स लगा देंगे इस तरीके से कि जो चिमनी है, ग्लास चिमनी है, ये इसके ऊपर रहे और नीचे से हवा जो एयर है वो पास होती रहे इस ग्लास चिमनी के अंदर. Now what we will observe, क्योंकि नीचे से एयर पास हो रही है तो ये जो चिमनी है, ये जो ग्लास लाइटेड कैंडल है ये बुझेगी नहीं, है ना, ये जलती रहेगी. फिर थोड़ी देर बाद सेकंड केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम इसको, जो दोनों हमने वुडन ब्लॉक्स लगाए थे, इसको रिमूव कर देंगे. अब सेकंड कंडीशन में आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो ग्लास चिमनी है ये पूरा इसके ऊपर सेटल्ड है वुडन ब्लॉक्स के ऊपर. ठीक है. यानी कि नीचे से यहाँ पर जो एयर पास हो रही थी अब वो यहाँ से एयर पास नहीं हो रही है. तो क्योंकि एयर पास नहीं हो रही है तो अब ये जो कैंडल है, जो लाइटेड कैंडल है, ठीक है, इसमें इट गेट फ्लिकर ऑफ, इसमें ना ये बुझ जाएगी और यहाँ से जो स्मोक है, ठीक है, इट स्टार्ट प्रोड्यूस. ओके चिल्ड्रन. तो ये जो यहाँ पर जो लाइटेड कैंडल थी, अब ये जो फ्लेम है इट गेट फ्लिकर्ड ऑफ और यहाँ पर स्मोक निकल रहा है इसमें से. ठीक है. अब थर्ड कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर हम एक अगेन वुडन ब्लॉक रख देंगे. ठीक है ना, वुडन पीस. इसकी वजह से अब क्या होगा कि अब थर्ड कंडीशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिल्कुल भी एयर पास नहीं हो रही है और यहाँ पर अब स्मोक भी एमिट नहीं हो रहा है. तो तीनों कंडीशन से व्हाट जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है, व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग प्रोसेस. किस कंबशन के लिए या किसी भी चीज को, किसी मटेरियल को बर्न होने के लिए क्या जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. You will learn about this process in higher classes, children. Sun में जो heat और light produce होते हैं, it is produced due to the process of nuclear reaction. जो कि जब आप higher classes में जाओगे तब इसके बारे में आप डिटेल में रीड करोगे. What is nuclear reaction? What is nuclear fission? What is nuclear fusion? Activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, एक्टिविटी 6.3 में एक बर्निंग वुड या बर्निंग चारकोल का पीस लेंगे और उसको आयरन प्लेट पर या फिर तवा पर रख देंगे. ध्यान रखना कि वो किसका पीस है, बर्निंग यानी कि जलता हुआ वुड या चारकोल का पीस है. अभी वो बर्न हो रहा है. ठीक है. नाउ कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. अब हम उसको बर्निंग वुड या चारकोल के पीस को ग्लास जार से या फिर टम्बलर से या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से कवर कर देंगे. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. डज चारकोल स्टॉप बर्निंग
after some time. Can you think of the reason why it stops burning? Now observe कि अब क्या होता है. क्या जो चारकोल, बर्निंग चारकोल या जो बर्निंग वुड का जो पीस था, now it stop burning after some time. अगर वो कुछ देर के बाद बर्न करना, उसमें बर्निंग बंद हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमने उसमें ग्लास जार या फिर टम्बलर या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार उसको कवर करा, वैसे उसको उसमें एयर पास होना बंद हो गई, एयर से उसका कनेक्शन कट ऑफ हो गया और वो इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम. So this again proves that for burning air is essential. You might have heard that when the clothes of a person catches fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Figure 6.3. Can you guess why? Children, जब भी किसी person के जो clothes है अगर फायर कैच कर लेते हैं तो एज वी ऑल नो कि हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप्ड कर देते हैं, उसके चारों तरफ, पर्सन के चारों तरफ उसको ब्लैंकेट में रैप्ड कर देते हैं, है ना, जिससे कि जो फायर है इट एक्सटिंग्विश, है ना. एक्सटिंग्विश मतलब कि फायर बुझ जाती है. ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही अपन उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप करेंगे फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी? क्योंकि जो फायर का जो फ्लेम का जो कनेक्शन है किसके साथ, एयर के साथ, वो कट ऑफ हो जाता है. और जैसे ही एयर का कनेक्शन कट ऑफ होगा उससे तो एयर के एब्सेंस में जो फायर है वो बुझ जाएगी, है ना, एक्सटिंग्विश हो जाएगी. Now recall some of your experiences. Does a matchstick burns by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burns when a burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? Have you heard of forest fire? Children, क्या मैचस्टिक अपने आप बर्न हो जाती है? वो कैसे बर्न होती है? अगर आप किसी जलती हुई मैचस्टिक को एक पेपर के पास लाओगे तो क्या वो बर्न होगा, फायर कैच कर लेगा? क्या अगर आप एक वुड के पीस को जलती हुई मैचस्टिक के पास लाओगे तो वो इट ऑल्सो स्टार्ट बर्निंग? या फिर अपन को उसको बर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है, जैसे कि केरोसिन ऑयल और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सटिंग्विशिंग या कंबस्टेबल सब्सटेंस अपन को यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बर्निंग अ पीस ऑफ वुड और कोल. यानी कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मैचस्टिक है या फिर पेपर का पीस है वो क्विकली फायर कैच कर रहा है, लेकिन वहीं वुड और कोल का जो पीस है वो इतनी जल्दी, इतनी क्विकली फायर कैच नहीं करता. इट टेक्स सम टाइम. Do these experiences tells you that different substances catch fire at a different temperature? Children, ये जो experiences है जैसे कि मैचस्टिक एंड पेपर का क्विकली फायर कैच करना, जबकि जो पीस ऑफ वुड है उसका थोड़ी देर से फायर कैच करना, तो ये क्या ये शो करता है कि अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Now children, what is ignition temperature? Ignition temperature is that lowest temperature at which different substances catches fire. यानी कि जो अलग अलग substances हैं वो जिस lowest temperature पे fire catch करेंगे वो उनका ignition temperature होगा. And that is why जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं. इट मीन्स उनके इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं. कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? चिल्ड्रन, अब हम इजीली बता सकते हैं कि मैचस्टिक क्यों रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करता है. जब तक हम उसको मैच बॉक्स के साइड में उसको रब नहीं करेंगे वो फायर कैच नहीं करेगी मैचस्टिक. ओके चिल्ड्रन, वी फाइंड दैट a combustible substance cannot catch fire on burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Children, suppose मैचस्टिक है या पीस ऑफ वुड है, उसका
वह इग्निशन टेम्परेचर जिस पे वो फायर कैच कर लेती है। अगर उस इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लो हुआ तो कोई भी सब्सटेंस फायर कैच नहीं करेगा। कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कब करेगा? जैसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, इट कैचेस फायर इजीली। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. Now children, अगर हम फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डालकर और उसको फ्राइंग पैन को अपन बर्निंग स्टोव पे गर्म करने के लिए रख देते हैं और बहुत लॉन्ग पीरियड तक उसको गर्म करते रहेंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि उसमें जो कुकिंग ऑयल है इट कैचेस फायर, वो फायर कैच कर लेगा। मतलब कि जब हम फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रखेंगे तो क्विकली फायर कैच नहीं करेगा क्योंकि वो उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। लेकिन बहुत देर तक अगर हम कुकिंग ऑयल को फ्राइंग पैन में गर्म करने के लिए रखते हैं स्टोव पर, तो एक टाइम पीरियड, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो फायर कैच कर लेगा। इट मीन्स दैट इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर जिसपे वो फायर कैच कर सकता है। इन द सेम वे जो केरोसिन ऑयल है या वुड है वो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जब हम किसी बाउल में या वुड ऐसे ही एक किसी रूम में रखा हुआ है तो अपने ओन रूम टेम्परेचर में फायर कैच नहीं करेगा। कोई भी चीज अपने रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करेगी जब तक कि उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है ना। लेकिन हम अगर कुकिंग ऑयल को जरा सा भी हीट करेंगे तो इट कैचेस फायर इजीली। लेकिन वहीं अगर हम वुड को हीट करेंगे लिटिल तो वो स्टिल फायर कैच नहीं करेगा क्योंकि जरा सा हीट करने से उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है। लेकिन अगर वहीं हम उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो जैसे ही वुड को उसका इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा जिसपे वो फायर कैच कर सकती है तो क्विकली वो फायर कैच कर लेगी। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड के इग्निशन टेम्परेचर से लो है, क्योंकि जो केरोसिन ऑयल है वो तो क्विकली फायर कैच कर लेगा, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है ना। यानी कि अगर हम सपोज ये है केरोसिन ऑयल और ये है वुड, दोनों को एक साथ बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो कौन जल्दी बर्न होगा? ऑब्वियसली केरोसिन ऑयल, है ना। और जो वुड है वो थोड़ा लेट बर्न होगा। इट मीन्स जो केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, इसलिए वो लेस टेम्परेचर पे ही फटाफट फायर कैच कर लेगा। लेकिन जो वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में हाई है, इसलिए ये थोड़ा देर से फायर कैच करेगा। ओके चिल्ड्रन।